everyone. Am I audible? Hello, dear students. Am I audible to everyone? Right. So everyone is typing yes, ma'am. Hello, ma'am. Nice to see you all. So I hope you all are doing good. I hope you all are safe and healthy. So let me see in the chat box कि सबके सब कैसे हैं. You know, whenever we interact with someone, सबसे पहली चीज हम यही पूछते हैं कि कैसे हाल चाल है. So let me ask you all that how you all are doing. So some are saying I'm fine, ma'am. Good evening, ma'am. Okay, मैं थोड़ा सा तेज बोलूंगी ताकि मेरी आवाज आ जाए. Because in the chat box some of you have written कि मेरी आवाज थोड़ी सी आ नहीं रही है. Don't worry, I'll be very loud and I'll be clear. I'll make sure that. Okay, so I hope I'm good to go. Okay, just for ensuring कि मेरी voice आप तक पहुंच रही है और आपको साफ सुनाई दे रही है, आप लोग 2-3 लोग please yes ma'am लिख के भेज दीजिए, so that I come to know that my voice is audible. All right. Okay, so stop typing now. Let us start with today's class. So let me first of all introduce myself. My name is Jay Nandini Singh, and I am a passionate soft skills trainer. So basically, I am here to groom you, to make you learn, and to make you understand कि soft skills की importance क्या है. Because ज़्यादातर लोगों को लगता है कि soft skills उतना मायने नहीं रखते हैं. But today in this program, I'm going to tell you that why soft skills are so much important. Okay, so ध्यान से सुनिएगा. अभी आप कुछ भी टाइप मत करिए, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात. Okay, so basically today's program, which is Industry Academia Interactive Program, which has been organized by SoftPro India. Okay, so SoftPro India ने ये program organize कराया है in collaboration with Dr. APJ Abdul Kalam Technical University. So we are really thankful to SoftPro India and Dr. APJ Abdul Kalam for conducting such a beautiful program, which is actually life changing for students. Because ऐसे programs बहुत कम ही होते हैं जहाँ पर students को उनकी life changing experience दिया जाता है. Okay, so let me tell you that in this program, basically we will be covering up each and everything जो आपके लिए required है in order to groom you as per the industry standards. Okay, industry आपसे क्या expect करती है, okay, क्या चाहती है आपसे, HRs की क्या expectation होती है, और एक अच्छा employee आप कैसे बन सकते हो, that entire thing will be covered up in this particular program which is related to soft skills. So I think some of the students are still saying कि voice नहीं आ रही है. I think क्योंकि 2-3 students के साथ ये problem है, so I would request you कि आप थोड़ा सा अपना audibility वाला जो settings है please वो check कर लीजिए, because I am actually very loud. Okay, but still I'll try to make it better. Okay, so before starting with this program, I would like to play a small video which is by Yashi Asthana ma'am, who is the CEO of SoftPro India. Okay, so program start करने से पहले और आज की class start करने से पहले मैं एक छोटा सा video play करूँगी, and I want each and everyone to carefully listen to what ma'am is about to say. Okay, so just give me a second and let's take a look over the video and the message which is shared by Yashi Asthana ma'am, the CEO of SoftPro India. So just give me a moment. Hello everyone, and welcome to SoftPro Group of Companies. I, Yashi Asthana, Chief Executive Officer of SoftPro Group of Companies, would like to welcome you all on behalf of the entire team in this unique program for which you people were waiting so eagerly since days, Industry Academia Interaction Program. So finally the day has come today when your classes are going to start
on your respective subject, what you have chosen in Industry Academia Interaction Program. Before starting this program, welcoming you all, I would also like to say thanks and pay my regards to the management team, to the administrative team of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, because of whom this program could have been made possible and this initiative was being taken by Team Softpro. Well, I would also like to tell you people that why this program has been conducted. I think you people are very much active these days on social media platforms, and you must have received a lot of mails and WhatsApp messages by Team Softpro. So I would like to once again say that this program of Industry Academia Interaction Program (IAIP) is being organized today for all of you because of the MOU which Softpro India has signed with Dr. APJ Abdul Kalam Technical University on 7th November 2023. There was a program where Softpro has signed this MOU in the gracious presence of the Honorable Technical Education Minister Sri Ashish Patel and in the presence of the Chief Secretary of Department of Technical Education Sri M. Devraj sir and the Honorable Vice Chancellor of AKTU Sri J.B. Pandey sir. So my regards to all these people, the dignitaries who have given Softpro India this opportunity, and they have given would like to welcome you all on behalf of the entire team in this unique program for which you people were waiting so eagerly since days, Industry Academia Interaction Program. So finally the day has come today when your classes are going to start
on your respective subject what you have chosen in Industry Academia Interaction Program. Before starting this program, welcoming you all, I would also like to say thanks and pay my regards to the management team, to the administrative team of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, because of whom this program could have been made possible and this initiative was being taken by Team SoftPro. Well, I would also like to tell you people that why this program has been conducted. I think you people are very much active these days on social media platforms, and you must have received a lot of mails and WhatsApp messages by Team SoftPro. So I would like to once again say that this program of Industry Academia Interaction Program, IAIP, is being organized today for all of you because of the MOU which SoftPro India has signed with Dr. APJ Abdul Kalam Technical University on 7th November 2023. There was a program where SoftPro has signed this MOU in the gracious presence of the Honorable Technical Education Minister Shri Ashish Patel ji, and in the presence of the Chief Secretary of Department of Technical Education Shri M. Devraj sir, and the Honorable Vice Chancellor of AKTU Shri J.P. Pandey sir. So my regards to all these people, the dignitaries who have given SoftPro India this opportunity, and they have given us the chance to serve and to cater our services to the AKTU students. So under this MOU, there will be a lot of activities what Team SoftPro is going to bring for all the AKTU students of engineering and MCA and MBA and architecture, out of which the first program which we are launching is IAIP. In IAIP, we are conducting this online lecture series by the industry experts of SoftPro as well as people from industry and the experts from MNCs, the top MNCs like Cognizant, TCS, Wipro, Infosys, etc. Those who will be interacting with all of you and will be teaching and making you learn the latest and the futuristic technologies of today's era. For example, Python, Java, machine learning, Internet of Things, that is IoT, web technologies, all these programs for the CS students. We will also be coming up with the programs for mechanical and civil students on CAD/CAM tools, as well as for electronic students which will be on embedded system. So all these technologies will be trained by the experts to all of you in this Industry Academia Interaction Program in online mode. I hope you people are very enthusiastic and energetic to learn these technologies and to get well versed with all these modern era technologies. Not only these, we will also be conducting the practical oriented physical mode workshops in your colleges very soon. We will also be coming up with placement opportunities, and SoftPro team will be also delivering lectures and will be conducting faculty development programs for the faculties of AKTU. These programs are being conducted for all of you free of cost because it is being sponsored by AKTU, but that doesn't mean that these are of no importance to you. Please be very particular about your classes because industry experts are going to train you on these technologies and will be making you employable for future IT sector. The classes will be conducted on Zoom platform as you people have joined today, and also you will be getting the self-learning material, your notes on SoftPro India's LMS PolyPrep. And one more important information for all of you, that these programs are certificate enabled, means you will be getting your certificate after the completion of every program under IAIP. And for that, what you have to do? Point number one, you have to be regular in your classes because after the completion of every class, a link will be shared with all of you where you have to mark your attendance. Number two, be very active on PolyPrep LMS. Go through your SLMs. Also, do your assessments. There will be quizzes, there will be assignments given to you by your experts, by your trainers on PolyPrep LMS. So please complete those tasks and assignments. So after the completion of this program, based on your attendance, your assessments and tasks, and your SLM completion, you all will be getting your certificate of your training program.
The credentials will be shared with all of you on your email ID, and there will be a team who will be at your support if you're having any problem in accessing your SLM. Plus, your expert will be training you daily for 1.5 hours and in this online class on Zoom platform. So I hope that this is going to be very much productive for all of you. You're going to learn a lot of things and will be beneficial. My best wishes are with all of you. So stay connected with Team SoftPro. Be active on your social media platforms because you'll be getting a lot of messages about the classes, about SLMs, about PolyPrep on your emails and WhatsApp status. So all the best. Thank you so much. All right, so students, that was Yeshi ma'am, the CEO of SoftPro India. So I'm highly thankful to her that she has organized such a great initiative in order to train you all and ensure कि आपका future हमेशा bright रहे. Okay, so without a further ado, let us start with the class today. So before starting with the class, I would like to ask कि आप जितने भी students आज connect हुए हैं, वो किस course से related हैं और किस year से related हैं? You can just type it in the chat box so that I come to know कि आप किस course से belong करते हैं. आप B.Tech कर रहे हैं, diploma कर रहे हैं या और कोई course कर रहे हैं. You can just write down in the chat box. So that because मेरे पढ़ाने से ज्यादा पहले ये important है मेरे लिए जानना कि आप सब कौन से कोर्स से बिलोंग करते हैं. So I can see that B.Tech, diploma, okay, MBA, right? Okay, so electronics engineering, final year, okay. So I think majorly the students that I can see are from the third year, final year. Great. Very nice. Okay. Okay, so it is great to see students that you have taken this much of pain to attend these online classes because I understand कि आप लोग already कितना busy रहते हो but आपने time निकाला है इस course को attend करने के लिए. So that actually proves कि आप कितने serious हो अपने future को लेके. Okay, and our team is going to ensure कि आपका ये जो stand है, जो take है, जो initiative आपने लिया है अपने लिए, we will ensure that it has a positive direction. Okay, so now let me ask one more question to you all that आपने ये course क्यों चुना है, किस intention के साथ चुना है, आप क्या expect करते हो. आप chat box में लिख सकते हो just in one word or one sentence that why have you opted for this course. Just one line on one word. What are you expecting from us? आपकी हमारी हमसे expectation क्या है? Okay, so Piyush has written best future. Okay, for learning, for growing, for enhancing communication skills. Okay, so you have interest in communication. Great answers. Okay, so I think most of you have the same intention कि आप learning करना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो और अपना future change करना चाहते हो. So okay, so I'm highly impressed. You all are actually wonderful students, and so what are we waiting for? Let us start with the class today. Okay, so आज की जो class है उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि इस course में basically हम क्या-क्या चीजें cover up करने वाले हैं. So कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ कि इस कोर्स में आगे आने वाले दिनों में हम क्या क्या चीजें कवर अप करेंगे. सो लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक ब्रीफ ऑफ इट. ओके, सो आज की क्लास में हम बेसिकली सीखेंगे कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं एंड सॉफ्ट स्किल्स का इंपॉर्टेंस क्या है. ओके, आई नो कि आपको पहले से ही पता है बट जस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मोर कि इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है और इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट करती है स्टूडेंट से, वो हम जानेंगे आज. ओके, एंड इन द अपकमिंग क्लासेस वी विल बी लर्निंग कि कैंपस प्लेसमेंट्स क्या होते हैं, प्लेसमेंट प्रोसेस कैसे इनिशिएट किया जाता है, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं एचआर की, कौन से डूज और डोंट्स हैं जो हमें इंटरव्यू में करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, हम वो भी सीखेंगे इन क्लासेस में.
then I will be focusing on your communication skills. Okay, so आगे आने वाली classes में I would expect you to participate and speak more and more. मैं one sided conversation नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी participate करें. ओके, सो बिगनिंग क्लासेस में थोड़ा सा मैं बताऊंगी और आगे आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे. देन इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है प्रॉपर कैंपस प्लेसमेंट्स में, या फिर आप कहीं भी इंटरव्यू में जाओगे जॉब इंटरव्यूज में, तो एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है हम वो भी सीखेंगे, राइट. एंड देन जीडी कैसे किया जाता है, रेज्यूमे कैसे बनाया जाता है, एटिकेट्स, social etiquettes basically. Okay, then presentation skills and face to face interview, इन सारी चीजों को हम कवर अप करने वाले हैं इस प्रोग्राम में. ओके, सो प्लीज स्टे ट्यून. आज पहला दिन है, मैं चाहती हूँ कि जितनी अटेंडेंस मुझे आज दिख रही है वो आगे आने वाली क्लासेस में भी दिखेगी. Nobody should miss these classes because these are actually very important. Okay, so just let me ask one last question that जितना भी अभी तक मैंने बोला, मैंने जितना भी बताया, कि आपको समझ में आया? जस्ट कुछ लोग yes टाइप कर सकते हैं. Whatever I have spoken so far, is it clear to you? Very good, very good. Okay, right. So in between, अगर किसी के कुछ भी question है, तो you can just raise the hand. I'll keep taking the query. But बीच बीच में ना लेके हम questions को थोड़ा सा end of the session में लेंगे ताकि हमारी classes hamper ना हो. Okay, so let me start with today's class. But before that, let me open the PPT for today. So basically soft skills पहले हम जानेंगे कि soft skills क्या होती हैं. तो let me just share quickly my slide with you all. Just let me know कि आपको visible है कि नहीं. एक बार मुझे chat box में please yes लिख के टाइप कर दीजिए if my presentation slide is visible to you. All right. So I think it is visible to everyone, right? Okay. So let us start. ओके, ठीक है. नाउ नो मोर टाइपिंग. अब थोड़ा सा फोकस करिए, जो मैं बोलने जा रही हूँ उस पर ध्यान से सुनिए. सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सॉफ्ट स्किल्स होती क्या है. देखिए, सॉफ्ट स्किल्स, जो वर्ड सॉफ्ट लगा हुआ है वो एक्चुअली में सॉफ्ट है नहीं, बिकॉज सॉफ्ट स्किल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज आज का जो ट्रेंड है, जो जॉब्स मिल रही हैं, उसमें ज्यादातर लोग वही सिलेक्ट होते हैं जिनका एटीट्यूड, जिनका बिहेवियर और जिनका कम्युनिकेशन पॉजिटिव होता है. ओके, एंड दैट इज ऑल अबाउट सॉफ्ट स्किल्स. आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे बात करते हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करने में कि आप एक अच्छे एम्प्लॉय या कैंडिडेट बन सकते हैं या नहीं. ओके, दो वर्ड्स होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स. ओके, सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स क्या होती है पहले मैं ये बता देती हूँ आपको. सो बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स की हम पहले डेफिनेशन जानेंगे कि सॉफ्ट स्किल्स हैं क्या. तो लेट अस अंडरस्टैंड. Soft skills are termed as interpersonal skills and personality traits that make a person successful in his job place. Okay, एक बहुत अच्छी सी कोटेशन कही गई है कि basically the person is hired because of the hard skills, but lack of soft skills can actually get you fired. So दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, आपकी हार्ड स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है और सॉफ्ट स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है. बट सॉफ्ट स्किल्स ये डिसाइड करती हैं कि आप किसी भी जॉब में कितना लंबा टिकने वाले हो या कितना लंबा चलने वाले हो. दैट इज डिसाइडेड बाय योर सॉफ्ट स्किल्स. ओके, सो सॉफ्ट स्किल्स को हम पीपल स्किल्स भी कहते हैं, या इंटरपर्सनल स्किल्स भी कहते हैं, या ह्यूमन स्किल्स भी कहते हैं. तो जिस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बोलते चालते हैं या बिहेव करते हैं, वो सब किसके अंडर में आता है? वो सब सॉफ्ट स्किल्स के अंडर में आता है. ठीक है, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ये हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं. ओके, जो कि हमें किसी भी जॉब में सक्सेसफुल बनाती हैं. आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि अगर एक एम्प्लॉय है जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, जिसकी टेक्निकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, बट वो रूड है, वो एरोगेंट है, वो टीम में काम नहीं कर सकता, वो ढंग से अपनी चीजें कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता, तो क्या ऐसा एम्प्लॉय टिक पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में? आई डोंट थिंक सो. टेक्निकल स्किल्स होना
सिर्फ टेक्निकल स्किल्स होना जरूरी नहीं है, बिकॉज टेक्निकल स्किल्स की वजह से आपको आपकी जॉब तो मिल जाएगी, बट उस जॉब में आप आगे सरवाइव कैसे करने वाले हो, या प्रमोट कैसे होने वाले हो, या ग्रो कैसे करने वाले हो, वो सब डिपेंड करता है आपकी सॉफ्ट स्किल्स पे। ओके, सो बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स क्योंकि हमारे रेज्यूमे में भी लिखी होती हैं, आप लोग अपने रेज्यूमे अगर रिकॉल करो कि जो भी आपने अपने रेज्यूमे में लिखा हुआ है, आपने लिखा होगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपकी लीडरशिप स्किल्स अच्छी है, ओके, आप पेशेंस रखते हो, ओके, एंड आप एडजस्टेबल हो, अडेप्टेबल हो। बट क्या ये चीजें वाकई में आपके अंदर हैं? एक्चुअली लिखना बहुत आसान होता है रेज्यूमे में सारी चीजें, बट द मोमेंट यू आर सिटिंग इन द इंटरव्यू, ये सारी चीजें धीरे धीरे एचआर को पता चल जाती हैं, बिकॉज इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो ये दिखा देते हैं कि आपके अंदर वो सॉफ्ट स्किल्स हैं कि नहीं, राइट? So basically soft skills are so important because it opens the door of new opportunities for you. Now let us move towards the next slide, which is actually about the hard skills. अब soft skills तो हमने समझ लिया कि soft skills are basically the interpersonal skills, people skills या फिर human skills जो हमारी मदद करती हैं working में या interaction में। अब hard skills क्या होती हैं? Hard skills होती हैं हमारी technical skills जो किसी भी जॉब से रिलेटेड होती हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसकी टेक्निकल स्किल्स क्या होंगी? उसकी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पे वर्किंग, ओके, या फिर जो लैंग्वेजेस आप सीखते हैं जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं तो ये आपकी क्या है? टेक्निकल स्किल्स हैं, और इन्हीं को हम हार्ड स्किल्स भी कहते हैं। ओके, सो जैसा कि स्लाइड में लिखा है कि हार्ड स्किल्स आर डिस्क्राइब्ड एज टेक्निकल स्किल्स दैट डिफाइन अ पर्सन्स एबिलिटी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ओके, सो बेसिकली आपको अगर कोई भी पर्टिकुलर काम पूरा करना है तो उसके लिए जो नॉलेज रिक्वायर्ड होता है वो इसी से रिलेटेड होता है, दैट इज योर टेक्निकल स्किल्स। नाउ बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि as it is written here कि it's often said that hard skills will get you an interview but you need soft skills to get and keep the job। तो जॉब लंबे समय तक रखने के लिए या उसमें लंबा चलने के लिए फ्यूचर में आपको सॉफ्ट स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? ओके, नाउ कुछ सॉफ्ट स्किल्स स्क्रीन पर आपके सामने हैं जो कि बहुत हाईली इन डिमांड है बाय द ऑर्गेनाइजेशन। सी मैंने क्योंकि अपने 9 साल के करियर में बहुत सारे एचआर से मुलाकात की है, उनको बेसिकली इनवाइट किया है, ओके, जहाँ पे स्टूडेंट्स हायर हुए हैं बहुत सारे, बट बहुत सारे एचआर्स की कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं जो वो देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स में, और वही स्किल यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, ये कुछ कॉमन स्किल्स हैं जो हर एचआर, हर कंपनी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि कैंडिडेट में हो। ओके, एंड सबसे टॉप पे जो लिखी है वो क्या है आपकी? दैट इज कम्युनिकेशन। सी कम्युनिकेशन इज वन थिंग विच इज मस्ट, क्योंकि अगर आप कुछ भी बोलोगे नहीं तो आप प्रेजेंट कैसे करोगे जो आपको आता है? तो बातचीत करनी जरूरी है, इंटरेक्शन करना जरूरी है। और कम्युनिकेशन से मेरा मतलब सिर्फ इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि कैंपस प्लेसमेंट पे या जॉब इंटरव्यू में फर्राटेदार इंग्लिश बोलने से ही सिलेक्शन होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छी इंग्लिश से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्फिडेंटली पहले बोलना सीखो, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्लेस होते हुए देखा है जो कि नॉर्मल हिंदी में भी बात करते हैं, बट क्योंकि वो डिसेंट है, हम्बल हैं, ओके, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन में कॉन्फिडेंट हैं, इसीलिए उनको जॉब ऑफर मिल जाता है। सो वन थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड इज योर कॉन्फिडेंस इन एनी लैंग्वेज। आप किसी भी भाषा में बात करें, बट आपका कम्युनिकेशन हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, नाउ द सेकंड वन इज लीडरशिप। लीडरशिप ऑफ कोर्स, व्हाई? क्योंकि कल को आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप इनिशियल स्टेज में तो एक लर्नर होंगे, ठीक है, जहाँ पे आप चीजें सीखोगे, बट कल को जब आप एक हायर लेवल पे प्रमोशन पाओगे तो आपको लोगों को लीड भी करना होगा। एंड आई थिंक आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कॉलेज लेवल और स्कूल लेवल से एक अच्छे लीडर बन जाते हैं,
अगर आप रिकॉल करो तो आपने बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया होगा, isn't it? You might have taken part as a volunteer, as a coordinator, या आप कैप्टन बने होंगे, स्पोर्ट्स कैप्टन, स्कूल कैप्टन, मॉनिटर। ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं? ये सारी चीजें ये दिखाती हैं कि आप में वो क्षमता है एक अच्छा लीडर बनने की। And believe me, there is one thing which is a fact, that a good follower is a good leader. तो अगर आपने इनिशियली एक वॉलंटियर की तरह काम किया है तो कल को आप एक अच्छे लीडर भी बन सकते हो। ओके, मूविंग अहेड, थर्ड वन इज डिसीजन मेकिंग। अगर आप डिसीजन अच्छे से ले लेते हो, मेरा मतलब अच्छे डिसीजन से लेना ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेना, बहुत हाई लेवल के डिसीजन लेना, नो, बट when it comes to even deciding what you have to buy at a shop, अगर आप एक क्विक डिसीजन मेकर हो, सो डेफिनेटली आप में वो स्किल्स हैं कि आप एक अच्छे डिसीजन ले सकते हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, या फिर आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। सो यू शुड बी दैट पर्सन हु इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, बेसिकली जिसे हम कहते हैं। ओके, यू आर अ पर्सन हु लुक फॉर सोल्यूशन। You don't create problem, but you solve problem by taking wonderful decisions. Okay, so after decision making, the most important one is the team working. So आप में से बहुत सारे लोग हैं जो टीम में काम करना पसंद करते होंगे, टीम में मिक्सअप हो जाते होंगे, जेल हो जाते होंगे, दोस्तों के साथ काम करना बहुत पसंद होगा। सो दैट इज एक्चुअली नीडेड। व्हाई इज इट नीडेड? बिकॉज एक इंसान जो एक टीम में काम कर सकता है, वो कल को आगे किसी कंपनी में एक बड़ी टीम को भी लीड कर सकता है। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? दे बेसिकली लीड अ टीम ऑफ पीपल। सो अगर आप सिर्फ एक डेस्क पर बैठकर जॉब नहीं करना चाहते, आप लीड करना चाहते हो, तो आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए। दैट इज द टीम वर्किंग स्किल्स। ओके, आफ्टर टीम वर्किंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट। टाइम आज की डेट में मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई इज इट सो? बिकॉज अगर आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर रहे हैं, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, तो डेफिनेटली आप कभी ना कभी चीजों में पीछे ही रहोगे, या फिर चीजें डिले करते रहोगे, जिसे हम प्रोक्रास्टिनेट कहते हैं। ओके, प्रोक्रास्टिनेट से मेरा क्या मतलब है कि हम आज काम नहीं करेंगे, हम कल काम कर लेंगे, इजंट इट? अपने टास्क को लगातार पेंडिंग में रखना, दैट इज कॉल्ड प्रोक्रास्टिनेशन। तो बेसिकली इफ यू हैव ग्रेट टाइम मैनेजमेंट स्किल, आप चीजों को डेडलाइंस के पहले ही फिनिश कर सकते हो। अभी तो आप कॉलेज लाइफ अपनी एंजॉय कर रहे होंगे, सो आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू माइट बी स्ट्रगलिंग विद दिस वन थिंग कि आपसे मे बी असाइनमेंट्स टाइम पे पूरे नहीं होते होंगे, प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट नहीं होता होगा। सो दैट एक्चुअली प्रूव्स कि आप टाइम मैनेजमेंट स्किल के साथ स्ट्रगल कर रहे हो। सो यू नीड टू हेविली वर्क ऑन दिस स्किल, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक ऐसे एम्प्लॉय बनो आगे चल के जो कि हर काम को, बल्कि हर काम को नहीं, बहुत सारे कामों को एक टाइम पर भी करना सीखे, एक मल्टीटास्किंग सीखे, isn't it? The last one is creativity and problem solving. क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। क्रिएटिविटी से हमारा मतलब ये नहीं कि चीजें बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे जाके डिफरेंट करें, बट चीजों को थोड़ा सा हट के करने की कोशिश करें। जैसे अगर किसी एक के पास सोल्यूशन है किसी चीज का, तो आप ऐसे इंसान हो जिसके पास कम टाइम में वो सोल्यूशन जल्दी निकल आए, ओके, या फिर कम रिसोर्सेस के साथ आप सोल्यूशन निकाल सके। दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। किसी भी काम को हट के करना और कम एफर्ट्स में करना, that is called innovation and creativity, right? So these were some of the highly demanded soft skills which are needed by organization. And believe me, आपको अगर ये लग रहा है कि सिर्फ नॉलेज होने से सिलेक्शन हो जाता है, तो लेट मी टेल यू, यू आर वेरी रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि हर कंपनी के प्रोसेस में मैंने कहीं ना कहीं ग्रुप डिस्कशन देखा है, ओके, ऐसे ऐसे प्रोसेस देखे हैं जहाँ पे कैंडिडेट की ये सॉफ्ट स्किल्स जज किए जाते हैं। तो आपका बेसिकली ऑनलाइन टेस्ट जो आपके नॉलेज से रिलेटेड होता है, वो तो बहुत बात की बात होती है, बट इनिशियली आपको कई बार ग्रुप डिस्कशन क्लियर करना होता है जिसमें ये सारी चीजें आपकी जज की जाती हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कंपनी के लिए ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज सॉफ्ट स्किल्स कभी भी सिखाए नहीं जा सकते, वो प्रैक्टिस के साथ आते हैं।
ठीक है। सो मैंने अगर प्रैक्टिस की है उस चीज की तो टाइम के साथ वो चीजें मेरे अंदर डेवलप हुई हैं। वैसे ही मैं आपको भी कहूंगी दैट यू शुड ट्राई टू डेवलप दीज थिंग्स। अभी तो आप अपने करियर के स्टार्टिंग फेज में हो, सो यू शुड ट्राई टू प्रैक्टिस दीज सॉफ्ट स्किल्स एंड ट्राई टू जनरेट, राइट? ओके, सो ये खत्म होने के बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगी, चैट बॉक्स में क्वेश्चन मेरी तरफ से है कि आपको क्या लगता है आपके अंदर एक ऐसी सॉफ्ट स्किल आप बताइए जो कि आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। इनमें से ऐसी कौन सी एक सॉफ्ट स्किल है आपके अंदर जो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, लेट मी सी। ऐसी कौन सी सॉफ्ट स्किल्स हैं आपके अंदर जो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है? लेट मी सी। Okay, let me see. Team working, time management. Okay, I think Mohit has written no one. इनमें से कोई नहीं है, तो आई थिंक मोहित के पास और भी सॉफ्ट स्किल्स होंगी, नॉट मे बी दीज. All right, very nice. So I think most of you are having, acha, patience. Yes, patience is also one of the soft skill which is needed in a candidate. Great. Okay. सो इट्स गुड टू सी कि ये सॉफ्ट स्किल्स आपके अंदर हैं, और जिनके अंदर नहीं है कोई बात नहीं, ट्राई टू डेवलप दीज. ओके, एंड आई नो कि लिस्ट में ऐसी बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स मैंने नहीं लिखी हैं जो आपके अंदर होंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, now moving ahead, let us understand that what is the basic difference between the hard skills and soft skills. उतनी देर से हम बात तो कर रहे हैं कि हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स में डिफरेंस क्या है. अब थोड़ा सा हम सामने स्क्रीन पर देख लेते हैं कि हार्ड स्किल्स की अगर हम बात करें तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. दैट इज जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओके, या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉपी राइटिंग, ट्रबल शूटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या फिर कई सारी लैंग्वेजेस में अगर आपकी एक्सपर्टीज है तो वो क्या कहलाती है? दैट इज योर सॉफ्ट स्किल्स. ओके, सो स्पेसिफिक जो कॉम्पिटेंसीज होती हैं आपकी, या जो स्किल्स होती हैं, जो नॉलेज होता है, एबिलिटी होती है किसी भी पर्टिकुलर काम को करने की, वो आपकी हार्ड स्किल्स है. एंड ऑन द अदर हैंड सॉफ्ट स्किल्स तो हमने कवर किया ही है. दैट इज मोटिवेशन, टाइम कीपिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एम्बिशन, नेगोशिएशन. ये सारी आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो आपके सॉफ्ट स्किल्स को डिफाइन करती हैं. राइट, लेट अस मूव अहेड. इफ इन केस एनीबडी हैज क्वेश्चन यू कैन राइट इट डाउन. अभी तक अगर आपको कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आया है या कोई भी डाउट है तो यू कैन जस्ट कीप राइटिंग योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स. आई विल टेक इट. ऑलराइट, तो आई थिंक अभी सो फार क्वेश्चंस आर नॉट देयर. ठीक है, फाइन. सो वी विल प्रोसीड अहेड. राइट. ओके, सो नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं कि एक वर्क प्लेस पर जब आप कल को किसी कंपनी में काम करोगे तो सॉफ्ट स्किल्स की इम्पोर्टेंस है क्या? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स? ओके, सो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि फ्यूचर उन्हीं लोगों को बिलोंग करता है जो हमेशा सीखने की चाह रखते हैं. द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु लर्न स्किल्स and combine them in creative ways. Okay, so basically आजकल हमें अपडेटेड होना बहुत जरूरी है. सॉफ्ट स्किल्स नई नई सीखना जरूरी है, अपने आप को अपडेटेड रखना जरूरी है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारा फोन होता है, ओके, बट उस फोन को हम अपडेट करते रहते हैं समय के हिसाब से, इजंट इट? उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, एप्स अपडेट करते हैं. व्हाई? ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और हम बेसिकली एक सिंक्रोनाइजेशन बनाए रखें आज के ट्रेंड के साथ. ओके, सो फॉर दैट वी कीप अपडेटिंग आवर फोन्स. ओके, सो फोन्स की तरह हम भी हैं, हमारी पर्सनालिटी है जिसको हमें अपडेट करते रहना चाहिए. और वो कैसे अपडेट होंगी? आजकल जो भी ट्रेंड में चल रहा है, सॉफ्ट स्किल्स हो चाहे हार्ड स्किल्स हो, उन चीजों से अपने आप को अपडेटेड रखिए. राइट. Okay, so you should understand the fact that everyone wants to gain a competitive edge. हर कोई आजकल लाइफ में चाहता है कि वो दूसरे को पीछे करके आगे बढ़े. तो बेसिकली यू नो दैट देयर इज अ कट थ्रोट कंपटीशन. आजकल के कंपटीशन में एक वैकेंसी के लिए हजारों स्टूडेंट्स बैठते हैं. तो आप अपने आप को डिफरेंट कैसे बनाएंगे? क्योंकि नॉलेज तो सबके पास है, नॉलेज सबके पास है, तो आपके अंदर डिफरेंट क्या है? आपको अपने आप को डिफरेंट करना है
एक ऐसा ह्यूमन बीइंग या एक ऐसा कैंडिडेट बन के जिसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स हो, क्योंकि आपकी सॉफ्ट स्किल्स ही आपको डिफरेंट बनाएंगी। मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने हमेशा देखा है कि नॉलेज उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर आपके पास एवरेज नॉलेज है लेकिन सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हैं, तो डेफिनेटली आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। बट अगर आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है और सॉफ्ट स्किल्स बिल्कुल नहीं है, then definitely you will not be able to survive the competition which is happening today. So you should understand this fact that in today's modern world, it is very important to gain soft skills. Now moving ahead, let us see that what's next is there. So basically एक एग्जाम्पल यहाँ स्क्रीन पर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि अगर हम अपने आप को समय के साथ अपडेटेड नहीं रखते हैं तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट चेंज विद टाइम। सो एक एग्जाम्पल है नोकिया कंपनी का। आपने नोकिया कंपनी का नाम सुना ही होगा, इजंट इट? बेसिकली नोकिया कंपनी एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, एक बहुत बड़ी जायंट कंपनी थी एक समय में। बट एक ऐसा टाइम आया जब नोकिया को शट डाउन करना पड़ा। बट व्हाट इज द रीजन, व्हाट वाज द रीजन ऑफ इट्स क्लोजिंग? नोकिया के बंद होने का रीजन ये था कि उन्होंने अपने फोन्स को समय के साथ अपग्रेड नहीं किया, जबकि उनके जो कंपेटिटर्स थे वो अपने फोन्स को टाइम के साथ अपडेट करते रहे। मीन्स जो भी लोगों की प्रेजेंट डिमांड्स थी इन रिस्पेक्ट ऑफ फोन, वो कंपनीज करती रही। और नोकिया ने क्या किया, नोकिया अपना वही ट्रेंड चलाता रहा जो वो इतने सालों से चला रहा था, जिसके रिजल्ट की वजह से क्या हुआ, नोकिया को टेक ओवर करने के लिए बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी आ गई। आज की डेट में ऐसी बहुत सारी मोबाइल कंपनीज हैं जो आई थिंक नोकिया को पीछे कर चुकी है। सो मेरा ये एग्जाम्पल बताने का बेसिकली रीजन ये है कि अगर आप अपने आप को अपडेटेड नहीं रखते हैं तो क्या हाल होता है, क्या रिजल्ट होता है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस एग्जाम्पल कि आप कितने भी बड़े हो, कितने भी बड़े जायंट हो, बट इफ यू डोंट flow with time, if you don't go as per the time, you are finished. So after giving this example, हम बात करेंगे benefits of soft skills. Soft skills के benefit क्या होते हैं, soft skills हमें फायदा क्या देते हैं, okay? बट यहाँ पे तो जैसे स्क्रीन पर दो फायदे लिखे हुए हैं आपके सामने, यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज टू बेनिफिट्स। पहला लिखा हुआ है कि हैविंग अ स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स गिव यू एन एज। आपको एक एडेड बेनिफिट मिलता है कि आपके पास सिर्फ नॉलेज ही नहीं है, आप एक ओवरऑल प्रोफेशनल हो। और सेकंड रीजन लिखा हुआ है कि आप अपने करियर में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। एंड आपके पास चाहे किसी भी कॉलेज की डिग्री हो या ना हो, इट डजेंट मैटर, अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स है तो आप एक्सेल कर सकते हो लाइफ में। ओके, सो दीज आर द टू बेनिफिट्स व्हिच आर रिटन हियर। बट अभी मैं आगे के बेनिफिट्स आपको नहीं दिखाऊंगी। आई वांट यू टू टेल मी कि बाकी के बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स हैं तो क्या बेनिफिट्स होंगे, मुझे एक सेंटेंस में लिख के दिखाइए चैट बॉक्स में कि क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, बताइए। अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स हैं तो लेट अस सी, देखें क्या लिखते हैं सब लोग। अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? माय क्वेश्चन इज दिस। ओके, एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, कॉन्फिडेंस, द पर्सन विल बी कॉन्फिडेंट, वेरी गुड। ओके, कॉन्फिडेंस गेनिंग होगी, राइट, ओके। और क्या एडेड बेनिफिट्स होंगे? ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे, वेरी गुड, यस। HR can understand our nature, good personality will be there, success, we can earn lot of money, okay, we can get best job, very nice, can work for longer hours, create good impression, marvelous, very good. सो डेफिनेटली आप लोगों ने जितने भी रीजंस यहाँ पर लिखे हैं ये एक्चुअली में एडेड बेनिफिट्स हैं अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स हैं तो। ओके, सो बेसिकली लेट्स मूव अहेड, ओके, एंड लेट्स टेक अ लुक ओवर द अदर added benefits. So number 3 is in order to elevate your personal brand and professional image. अगर आपको अपने आप को एक सक्सेसफुल प्रेजेंट करना है किसी के सामने, सो आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए ताकि आप अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज को
और अपने सॉफ्ट स्किल्स को कंबाइंड करके एक ब्रांड किसी के सामने प्रेजेंट कर सको। क्योंकि देखिए, आप अपने आप को नॉर्मल तो नहीं मान सकते, क्योंकि अगर आप अपने आप को एवरेज मान रहे हो या नॉर्मल मान रहे हो तो डेफिनेटली सामने वाला आपको कुछ भी नहीं समझेगा। यू नीड टू बी वेरी मच कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। आप खुद एक ब्रांड बनिए। ओके, आप किसी के सामने जॉब की भीख मत मांगने जाइए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि वो बंदा आपको जॉब पे रखे। ओके, सो यू शुड बी दैट पर्सन फॉर whom the company should be excited to take. Okay, the fourth one is this personal attribute and character traits enables us to interact effectively. जैसा कि चैट बॉक्स में कुछ लोगों ने लिखा था, बहुत सही लिखा था कि इंटरैक्ट करने में बहुत मदद करता है। अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हैं तो आप किसी से भी इंटरेक्ट कर सकते हो और कभी भी कर सकते हो और किसी भी सिचुएशन में कर सकते हो। क्योंकि जिस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस है वो किसी से कभी भी बात कर सकता है कॉन्फिडेंस के साथ। आई एम श्योर आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जिनको अगर पोडियम पे वो खड़े होते हैं या 3-4 लोगों के सामने उन्हें खड़े होकर बोलना होता है तो वो नहीं बोल पाते होंगे। या फिर बेसिकली अगर आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो आप ढंग से मे बी इंग्लिश में ऑर्डर भी नहीं कर पाते होंगे। सो ये कुछ चीजें हैं जो शायद ये कहीं ना कहीं प्रूव करती हैं कि आप थोड़े से भी अंडर कॉन्फिडेंट हो। तो अपनी पर्सनालिटी को और ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाने के लिए और ज्यादा ग्रूम करने के लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली डेवलप करना बहुत जरूरी है। Let's take a look over the next one. The fifth one says that soft skills basically helps us to go far and maintain our job. लॉन्ग टर्म में किसी भी कंपनी में चलने के लिए सॉफ्ट स्किल्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। क्यों? क्योंकि जब एक बार हमें जॉब मिल जाती है और हम कई साल उस जॉब में बिता देते हैं तो एक ऐसा टाइम आता है जब जो हमारे बॉस होते हैं या जो हमारे कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो ये डिसाइड करता है कि इतने सारे एम्प्लॉय में वो कौन सा एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसको हम हेड बना सकते हैं। क्योंकि सारे एम्प्लॉय तो सेम लेवल पर ही होते हैं, बट हु इज दैट वन पर्सन हु कैन लीड अदर पीपल। तो बेसिकली दैट इज अ बेनिफिट। अगर आपके अंदर एक अच्छे सॉफ्ट स्किल्स हैं, आप एक अच्छे लीडर हो, एक अच्छे टीम वर्कर हो, एडेप्टेबल हो, फ्लेक्सिबल हो, एक अच्छे कम्युनिकेटर हो, तो यू कैन ग्रो ड्रास्टिकली इन योर लाइफ। Then let's move to the next one. Okay, basically अब इस स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है आपके सामने। ओके, जो आपको आंसर करना है अभी। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द बेसिक बट नेसेसरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कंपनी। किसी भी कंपनी का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आप चैट बॉक्स में लिखिए कि किसी भी कंपनी का एक बेसिक गोल क्या होता है आपके हिसाब से, बताइए। लेट मी सी द आंसर्स। Okay, basically to gain profit, to survive, grow, to earn profit, how to grow in less time. Very good. Okay, become number one. Yes, definitely. हर कंपनी का कहीं ना कहीं एक गोल होता है कि वो नंबर 1 बनना चाहते हैं। Grow their business, grow their company reputation. Very good. Gain profit, better working environment. Okay, but मुझे आपसे ये पूछना है कि ये सारी चीजें अचीव कैसे होंगी? कोई भी कंपनी अगर टॉप पे पहुंचना चाहती है, नंबर 1 बनना चाहती है, अपनी रेप्यूटेशन बनाना चाहती है, तो इन सब के लिए एक बेसिक चीज करनी क्या जरूरी है? उसका आंसर ये है कि उन्हें अगर ये सारे गोल्स अचीव करने हैं तो उसके लिए उन्हें किसकी जरूरत पड़ेगी? उसके लिए उन्हें जरूरत पड़ेगी, लेट अस सी, चैट बॉक्स में देखते हैं। यस, वेरी गुड, दैट इज बेस्ट एम्प्लॉइज की। डेफिनेटली, क्योंकि एक कंपनी कभी भी अकेले वो टारगेट अचीव नहीं कर सकती। वो किसकी मदद से अचीव कर सकती है? बेस्ट एम्प्लॉइज की मदद से। तो बेसिकली the next slide says that having employees who helps in running the company smoothly and effectively. तो एक कंपनी का जो सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी गोल होता है वो ये होता है कि हम कैसे अच्छे एम्प्लॉयज को हायर करें जो कि हमारी कंपनी को ऊपर ले जा सके। ऐसी बहुत सारी कंपनी आपने देखी होगी कि जिनके सिर्फ एम्प्लॉयज के एफर्ट की वजह से वो कंपनी ग्रो करती है। फॉर एग्जाम्पल हम रिलायंस का नाम ले सकते हैं। रिलायंस के जो एम्प्लॉयज होते हैं या टीसीएस के जो एम्प्लॉयज होते हैं, इन्फोसिस के होते हैं, दे आर सो मच डिवोटेड टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन और उनकी मेहनत की वजह से ही वो कंपनी आज उस मुकाम पर है।
तो इसीलिए जब कैंपस हायरिंग होती है, जब जॉब इंटरव्यूज होते हैं, तो एचआरस उस कंपनी की डिमांड को अपने दिमाग में रखते हुए ऐसे ही बच्चों को सिलेक्ट करते हैं जो कि आगे फ्यूचर में उनकी कंपनी को ऊंचे लेवल पर पहुंचा सके। तो इसीलिए सॉफ्ट स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू चैट बॉक्स में जो आंसर्स आपने लिखे थे, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। आई थिंक आप टाइम के साथ ये समझ चुके हैं दैट स्किल्ड एम्प्लॉय होना कितना जरूरी है rather than being the best employee, isn't it? Okay. बेसिकली अब हम थोड़ा सा एक रिकैप लेंगे कि कुछ सॉफ्ट स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, हम वो देख लेते हैं जल्दी से। ओके जैसा कि हमने बात की थी कि कम्युनिकेशन क्यों जरूरी होता है, तो एक कहावत कही गई है कि बेसिकली आपने वो दोहा तो सुना ही होगा कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए। तो हमेशा बात हमें इस तरीके से करनी चाहिए कि सामने वाला पूरी तरीके से इम्प्रेस हो जाए, चाहे हम हिंदी में बात करें चाहे इंग्लिश में बात करें, बट हम बात ऐसे करें कि सामने वाला हमें हमेशा याद रखे। आपका इम्प्रेशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ओके तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस समय यहाँ पर एडेड है मेरे साथ, प्लीज आप सबसे पहले बोलने की कोशिश करिए, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स में जो एक चीज होती है वो है हेजिटेशन। आप बहुत ज्यादा पैनिक करते हो, सोचते हो कि क्या बोले कैसे बोले, सामने वाला हमें जज तो नहीं करेगा। प्लीज आपको ये सब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। यू शुड बी एब्सोल्युटली फ्री टू स्पीक वट एवर यू वॉन्ट। ओके बट हाँ, डिसेंसी के साथ हमेशा बोलिए, सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हुए बोलिए। दैट्स हाउ यू विल गेन द फर्स्ट एंड द पॉजिटिव इंप्रेशन। ओके सो ये तो कम्युनिकेशन की बात थी। ओके इफेक्टिव कम्युनिकेशन not only helps you in expressing yourself but also builds the strong connectivity, क्योंकि जब आप अच्छे से बातचीत करते हो किसी से तो आपकी एक कनेक्टिविटी बन जाती है किसी के साथ। जैसे अभी मैं अगर आपसे बातचीत कर रही हूँ और अगर मैं इस तरीके से बातचीत कर रही होती कि किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा होता, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू माइट हैव फेल्ट डिस्कनेक्टेड, आप मुझसे डिस्कनेक्टेड फील करते। बट आप, मेरा ये इंटेंशन ही है कि मैं सबके साथ कनेक्टिविटी रखूं। इस समय मेरे सामने 195 लोग मुझे दिख रहे हैं, 196। सो आई वांट दैट ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड फील कनेक्टेड विद मी, एंड फॉर दैट आई हैव टू मेक एफर्ट्स, क्योंकि सामने वाला एफर्ट कभी नहीं करेगा, एफर्ट आपको ही डालने हैं। तो प्लीज अगली बार जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करें, इंश्योर कि वो इंसान आपको याद रखे। ओके नाउ द सेकंड वन इज दैट इज टीम वर्किंग, जिसकी हमने बात की थी। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। तो हमेशा टीम वर्किंग बेसिकली बहुत जरूरी है, टीम में काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेले आप काम कर सकते हो बट एक लेवल तक आपको कभी ना कभी अपने आसपास के लोगों की जरूरत पड़ेगी। आपने अगर अपने घर में भी देखा होगा तो बेसिकली आपके मम्मी, आपके पापा, आपके भाई बहन, आप सब मिलकर ही वो घर चला रहे हैं, isn't it? So for completing the challenging task, for facing the challenges, for solving the problem, you need to learn team working skills. Okay, basically क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल इतनी सारी कंट्रीज नेशन इंटरकनेक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं जरूरी होता है कि हम हर किसी के साथ खुल के काम कर सके। मान लीजिए अगर आपका कल को सिलेक्शन साउथ इंडिया में हो जाता है किसी भी स्टेट में, तो आपके साथ ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ अपने ही सिटी के लोगों के साथ काम करने में कंफर्टेबल रहे, बट यू शुड बी फ्री इनफ and confident enough to work with each and every level of person, each and every person who belongs to a different culture also, चाहे वो इंसान किसी भी रिलीजन का हो, किसी कास्ट का हो, किसी कल्चर का हो या किसी कंट्री का हो, आप सबके साथ एक जैसा काम रखे। So that is your team working skills. Okay, now the third one is that is basically the modern workplace is dynamic। हमें पता ही है कि आजकल का जो मॉडर्न वर्क प्लेस है वो कितना ज्यादा बड़ा है, कितना चेंजेस हो रहे हैं उसमें, और रोज ही चेंजेस होते हैं। तो हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है एडेप्टेबल होना, उन चीजों के साथ एडजस्ट करना, उन चीजों को सीखना और समय के साथ अपने आप को ढालना। बेसिकली अंडरस्टैंड वन थिंग कि आप वही पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स को लेकर नहीं चल सकते।
आपको हमेशा समय के साथ अपने आप को अपग्रेडेड रखना है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आपके अंदर अभी फिलहाल टेक्निकल स्किल्स कुछ नहीं है, आपने कोई वर्कशॉप नहीं की है, कुछ भी कोर्स नहीं किया है, तो प्लीज करिए, क्योंकि एडेप्टेबल होना समय के साथ और फ्लेक्सिबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज कल को अगर रिज्यूमे दिखाने की बारी आई और आपके पास कुछ भी लिखने के लिए नहीं हुआ, तो इट विल बी एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर यू। ओके, सो द थर्ड वन इज एडेप्टेबिलिटी, जिस पे आपको वर्किंग करनी है। Now, the fourth one is very important, that is emotional intelligence. Emotional intelligence क्या होता है? There are two words basically. That is your intelligence quotient and emotional quotient. दो words होते हैं. Intelligence quotient आपके knowledge से related होता है. ओके आपके अंदर टेक्निकल स्किल्स कितनी अच्छी हैं ये जज करती है कंपनी। एंड दूसरी चीज जो कंपनी कभी कभार जज करती है, वो जज करती है आपका इमोशनल क्वेश्चन। और इमोशनल क्वेश्चन से मेरा मतलब इमोशनल होना नहीं है। इमोशनल क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि आप दूसरों को कितना अच्छे से समझते हैं। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हैं, आसपास लोगों के साथ काम करते हैं, तो आपको उन्हें समझना जरूरी है। योर अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी एंड बेसिकली पुटिंग योर सेल्फ इन अदर शूज। हम कहते हैं ना कि दूसरे की सिचुएशन को समझना, कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या करता, इजंट इट? तो एक कंपनी हमेशा आपके इमोशनल क्वेश्चन, आपकी साइकोलॉजी को भी जज करती है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके हायरिंग प्रोसेस में साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है, जो कि ये जज करता है कि आप इमोशनली एज अ पर्सन कैसे हो। तो बिलीव मी, कल को अगर आप किसी बहुत बड़ी कंपनी के लिए एस्पायर कर रहे हो या जॉब करना चाहते हो, तो हो सकता है कि ये एक हायरिंग प्रोसेस का हिस्सा हो, जहाँ पे आपकी साइकोलॉजी जज की जाए या इमोशनल क्वेश्चन जज किया जाए। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इफेक्टिव लीडरशिप। ओके, सो इफेक्टिव लीडरशिप क्या होता है? इफेक्टिव लीडरशिप इट इज नॉट जस्ट कि आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है तो आप दूसरों को लीड कर सकते हो। नो, नॉट एट ऑल। मैंने बहुत सारी कंपनीज में ऐसे लोगों को भी लीड करते हुए देखा है कि जिनके अंदर उतना नॉलेज अच्छा नहीं था। ओके, वो ठीक ठाक स्किल्ड थे, बट वो टीम को लीड कर सकते थे, इसलिए शायद उन्हें ऊपर रखा गया। तो आपको अपने अंदर अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाना है, द वन हु कैन work well with others, interact with others and can understand and connect with others। वही आपको एक अच्छा लीडर बनाएगा। एक कोटेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, दैट अ लीडर इज द वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। तो इसी लीडरशिप एंथुजियाज्म के साथ आगे कोशिश करिए कि आप एक अच्छे लीडर बने। ओके, बेसिकली अच्छा मुझे ये बताइए, आप सब चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको क्या लगता है कि एक अच्छे लीडर में सबसे बेसिक क्वालिटी क्या होनी चाहिए? एक अच्छे लीडर में, जो एक अच्छा लीडर होता है उसके अंदर सबसे बेसिक क्वालिटी क्या होती है? लेट अस सी, चैट बॉक्स में लिख के दिखाइए मुझे। लेट्स सी, अगर कोई एक अच्छा लीडर है तो उसके अंदर बेसिक क्वालिटी क्या होगी? लेट मी सी। गुड बिहेवियर, हम्बल, एक्नॉलेजिंग, ओके, ऑब्जर्विंग, power, okay, considerate, solving other problems, attached with others, good behavior, very nice, strong decision maker, unity, discipline, should have patience, empathy, very nice. I think you people are actually getting what I'm trying to say. I mean, this is the, the best class जो अभी तक मैंने ली है, where students are actually understanding कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। Okay, so I think chat box में जितनी भी चीजें आपने लिखी, कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो सामने वाले को समझे, सिर्फ अपनी ना चलाए। क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाते ऑर्गेनाइजेशन में। आई थिंक फिर वो डिक्टेटर कहलाते हैं। अगर आप दूसरे को डोमिनेट करोगे, अपनी चीजें थोपोगे, तो आई थिंक आप एक अच्छे लीडर नहीं हो। लेकिन अगर आप सामने वाले की बातों को सुनते हो, उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो और सबको साथ में आगे लेके चलते हो, देन यू आर अ वेरी गुड लीडर। सो आई एम श्योर कि आप में से मेजोरिटी ऑफ द लोग बहुत अच्छे लीडर होंगे। नहीं भी हैं तो कोशिश करिए, आप बन जाएंगे। ओके, now after effective leadership, the next one says is patience। पेशेंस बहुत जरूरी है। एंड लेट मी टेल यू,
कि आजकल लोगों के पास इसी चीज की सबसे ज्यादा कमी है, पेशेंस। व्हाई? बिकॉज हम आजकल के जमाने में इतना इम्पेशेंट हो चुके हैं कि हम लोगों की बात सुनना भी नहीं चाहते। हमें वही बोलना है जो हम बोलेंगे, बट दैट इज अ रॉन्ग एटीट्यूड। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो क्लास चल रही है, आप लोग कितना एक्टिवली मेरी बात को सुन रहे हैं, ओके, पेशेंस के साथ रिप्लाई भी कर रहे हैं। मैं चैट बॉक्स में जब आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो आप आंसर्स भी टाइप कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पेशेंस एंड एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग, एक चीज समझिए कि एक्टिव लिसनिंग थोड़ी सी लिसनिंग से हटकर है, क्योंकि लिसनिंग का मतलब हमें लगता है कि सिर्फ सुनना जो आसपास हमारे चल रहा है, बट यू आर रॉन्ग। एक्टिवली लिसनिंग का मतलब है कि हम समझने के लिए किसी की बात को सुने, ना कि रिप्लाई करने के लिए। आजकल मेजॉरिटी लोग लिसनिंग को यही मानते हैं कि मैंने कुछ बोला और आपने फट से मुझे पलट के जवाब दे दिया, बट दैट इज नॉट लिसनिंग। Active listening has everything to do with giving relevant answers whenever it is needed. Relevant speaking, कि आप relevant बोलो या फिर मत बोलो। कहते हैं ना कि जो खाली बर्तन होता है वो ज्यादा शोर करता है। तो अगर आपके पास नॉलेज है, टैलेंट है, स्किल है, तो आपको पता है कि कब क्या बोलना है। तो राइट टाइम पर राइट चीज बोलना बहुत जरूरी है। एंड वो कब होगी? जब आप एक्टिवली सुनेंगे और पेशेंस डेवलप करिए, जल्दबाजी मत करिए। ओके, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि अरे क्लास कब खत्म होगी, अरे मैम जल्दी रैप अप करें। नो, दैट मीन्स दैट यू हैव लैक ऑफ पेशेंस। इम्पेशेंट अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में भी कल को दिखेगा दैट यू आर इम्पेशेंट, तो डेफिनेटली आप लोगों द्वारा उतना ज्यादा पसंद नहीं किए जाओगे, क्योंकि जल्दीबाजी में काम करने वाले को कोई भी पसंद नहीं करता है, राइट? जो थोड़ा बहुत चैट बॉक्स में अभी मैंने देखा कि बेसिकली अंकित ने लिखा है कि लिसनिंग इज अ प्रोसेस इन माइंड एंड गिविंग क्विक रिस्पॉन्स एंड इट इज अ वे ऑफ लिसनिंग। यस अंकित, यू आर राइट कि एक्टिवली जब हम लिसन करते हैं तो हम क्विक रिस्पॉन्स भी देते हैं। यू आर वेरी राइट, क्योंकि इंटरव्यू में कभी कभार ऐसा होता है कि जब कैंडिडेट ध्यान से सुन नहीं रहा होता है चीजें एचआर की, तो वो आंसर नहीं कर पाता। ओके, एंड इससे ये जज हो जाता है कि कैंडिडेट सुन ही नहीं रहा था एचआर की बात। तो जॉब इंटरव्यूज के लिए आपका पेशेंस और आपकी एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि कुछ कैंडिडेट्स थे, वो बेसिकली मैं एक कंपनी को मैंने इनवाइट किया था और कुछ कैंडिडेट्स बाहर वेट कर रहे थे अपने इंटरव्यू के लिए, और उन्हें आधा घंटा हो गया था। दे वर वेरी इम्पेशेंट कि मैम हमें एचआर कब बुलाएगा अंदर, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें यहाँ जाना है वहां जाना है। डू यू थिंक दैट इज दैट अ राइट एटीट्यूड? क्योंकि अगर आप जॉब इंटरव्यू में बैठे हो तो गरज आपकी है, गरज सामने वाले की नहीं है। अगर आपको वो जॉब चाहिए तो आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप 1 घंटा 2 घंटा वहां बैठे रहें जब तक कहा जाए। तो दैट मच ऑफ पेशेंस यू शुड हैव। और पेशेंस का मतलब इससे भी है कि जब आपको 1 घंटे बाद उस रूम में अंदर बुलाया जाए तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी स्माइल के साथ उस एचआर को वैसे ही विश करें, ना कि इरिटेट होते हुए, isn't it? तो अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट कल को बनना चाहते हैं ड्यूरिंग द जॉब इंटरव्यू, तो पेशेंस और एक वार्म स्माइल चेहरे पर और एक्टिवली सुनना चीजों को सीखिए, बिकॉज ये एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कामिनी ने भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट लिसन टू द थिंग एंड देन अंडरस्टैंड दैट थिंग फ्रॉम द अदर पर्सन एंड थिंक पॉजिटिव। वेरी गुड कामिनी, बहुत सही लिखा है आपने कि पहले हमें सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने के बाद ही हम समझते हैं और समझने के बाद हमारी कनेक्टिविटी बनती है किसी के साथ। वेरी नाइस। Okay, now basically, as you can see that here a quotation is written which says that your past might have been filled with challenges. Yes, ऐसा हो सकता है कि आपका past challenges से filled up रहा हो, आपने बहुत सारी मुश्किलें झेली हो, I can understand that, but then आपका प्रेजेंट अच्छा है क्योंकि आज आप एफर्ट्स कर रहे हैं। आज अगर आप ये क्लासेस ले रहे हैं तो आई एम श्योर ये दिख रहा है कि आप कितना पेन ले रहे हो उस चीज के लिए। तो इसकी वजह से क्या होगा? योर फ्यूचर विल बी लाइफ चेंजिंग। आपका फ्यूचर डेफिनेटली चेंज होगा। आज आप किसी भी लेवल पर हो, ठीक है, आप किसी भी टेंशन में हो, किसी भी प्रेशर में हो, बट डोंट लूज होप, क्योंकि आज अगर आप एफर्ट्स कर रहे हो तो इसका रिजल्ट आपको कल दिखने ही वाला है। ओके, सो बेसिकली
what I'm trying to say in today's session is that cultivate the art of soft skills. Okay, आज की क्लास में हमने बेसिकली यही सीखा कि सॉफ्ट स्किल्स को हम कैसे कल्टिवेट कर सकते हैं, राइट? ओके, सो आई होप कि आज की जो क्लास है आपने सीखा होगा हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में. डोंट वरी, आगे की क्लासेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि हम इंटरव्यूज भी करेंगे, जीडी करना सीखेंगे, ओके, एंड आपके रिज्यूमे पे वर्किंग करेंगे, ओके, एंड बहुत सारी चीजें हैं. सो डोंट मिस दीज क्लासेस, ओके, एंड जो भी चीजें या जो भी असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगी वो आपको पूरे करने होंगे, ठीक है? तो आज की अभी तो फिलहाल मैंने यहाँ पे स्लाइड रोकी हुई है. लास्ट में मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज की क्लास से आपने एक लर्निंग क्या ली है, वो मुझे आप चैट बॉक्स में लिख के दिखाइए. आज की क्लास से जो भी एक लर्निंग आपने ली है वो क्या है, वो मुझे लिख कर दिखाइए चैट बॉक्स में सब लोग, जल्दी से. Okay, so Nikki has written how to achieve soft skills and how to apply consistency towards goal, importance of soft skill, right? To be a good human being, किसी को सुनना और समझना, patience, developing patience, right? Difference between hard skill and soft skill, speak less and think more, developing our skills, right? Okay. वेरी नाइस, वेरी नाइस. आई थिंक जो मैं समझाना चाहती थी वो आप सब समझ गए हैं. ओके, अच्छा, आगे की क्लासेस में मैं थोड़ा सा ये भी चाहूंगी कि आप लोग अपनी वीडियोस भी ऑन रखिएगा, बिकॉज मैं भी आप सबको देखना चाहती हूँ जैसे आप सब मुझे देख सकते हैं. आई वुड लाइक यू ऑल टू बेसिकली स्विच ऑन योर वीडियोस इन द अपकमिंग क्लासेस, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी आपको देखकर जानना है आपके बारे में, सो दैट हम म्यूचुअली एफर्ट कर सकें. ओके, मैं चाहती हूँ कि जब ये पूरा सेशन आपका एंड हो तो आप एक ऐसे ह्यूमन बीइंग या एक ऐसे प्रोफेशनल बन के निकलो हु इज अ बिट चेंज्ड. ओके, आज आप जो भी हैं जैसे भी हैं अच्छे हैं, बट आप इससे बेहतर बनेंगे. आई एम रियली वेरी श्योर अबाउट इट. ओके, सो एंडिंग में मैं थोड़ा सा एक चीज और आपसे सजेशंस मांगना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसपे आप चाहते हैं कि मैं वर्किंग करूं. ऐसी कौन सी चीजें हैं या बेसिक स्टेप्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं फॉलो करूं आगे आने वाली क्लासेस में, जिससे कि आपका बेनिफिट हो, आपका इंप्रूवमेंट हो. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ओके, स्पीकिंग स्किल्स, मॉक इंटरव्यूज हम करेंगे डेफिनेटली, टीम वर्किंग वाली एक्टिविटीज भी हम करेंगे, लीडरशिप स्किल्स भी, राइट? इंग्लिश स्पीकिंग पे हम वर्किंग करने वाले हैं डेफिनेटली. Then decision making पे working, right? Listening capacity, okay, and improvement in English. Definitely, don't worry about it. I think most of the students का जितनी भी चीजें आप लिख रहे हैं ये मेरे ऑलरेडी जो मॉड्यूल मैंने बनाया है आप लोगों के लिए वो सब मैंने इंक्लूड किया हुआ है. द बेस्ट पार्ट इज दिस. ओके, एंड कोई बात नहीं, आज तो ये चीजें हैं, बट अगर आपको लगता है कि और भी कुछ चीजें हैं जो मुझे करनी चाहिए आगे चल के, वो आप मुझे बता सकते हैं. ओके, एंड बेसिकली बिफोर एंडिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कुछ एक दो लिंक हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी. आई थिंक दैट इज रिलेटेड टू योर अटेंडेंस एंड ज्वाइनिंग द व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, वो थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, अभी क्लास से लॉग आउट मत करिएगा. अभी मेरी क्लास के बाद मैं एक लिंक शेयर करने वाली हूँ आपसे, ठीक है? उसे प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे एंड आपकी अटेंडेंस भी मार्क होगी, राइट? ओके, सो सो बिफोर आई लीव दिस सेशन, एक चीज और है जो मैं मेंशन करना चाहूंगी कि अगर बेसिकली सॉफ्ट प्रो का एक यूट्यूब चैनल भी है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसपे इससे रिलेटेड और भी वीडियोस हैं जो आप टाइम टू टाइम वॉच कर सकते हो, ठीक है? दैट विल बी एन एडेड बेनिफिट फॉर यू. ओके, सॉफ्ट प्रो इंडिया करके आप सर्च करोगे यूट्यूब पे, सो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब दैट चैनल. ओके, but it's your wish. If you want to, you can. If you don't want to, you're most welcome. Okay, so I'll pause it here and I will just hold on everyone. Stay here only. Don't go anywhere because अभी मैं लिंक आपसे just share करने वाली हूँ. Okay, so have patience. जैसा कि मैंने बोला कि patience होना बहुत जरूरी है. Okay, so have patience for 5 minutes
and I'm just sharing the link with you all. Stay tuned. Okay, so I guess as you can already see that there is a link that has been shared. So you can just join that. Okay. Ensure that आप सब join कर लें. Okay. And कुछ लोगों ने मुझे wish किया happy learning. So I would also like to wish you all at happy learning. Keep learning and give your efforts. Okay. So I'm just sharing the scan code. You can just go ahead. So this is the attendance form link that I've shared with you. You can just take a look. Just click on it and start joining it. Okay. And thank you so much for all your compliments. Wonderful compliments have been given by most of you. And I'm sure कि मैं आपके expectation को fulfill करूँगी. Okay. And और अच्छे से हम classes करेंगे. Okay.